We'll solve some problem based on enantiomer, diastereomer, homomer. So today children, we'll see, we'll learn the trick also how to solve this problem. It's very easy. यहाँ हमारे पास we have this two problem. Number 1 and 2, there are two compounds are there. So we have to identify enantiomer, diastereomer, homomer. So let us write this symbol: enantiomer for E, diastereomer for D, and homomers for H. Homomers means identical reactant. So if you see this product very carefully, so OH, OH, OH. So this is one side here, hydrogen one side. Again you can see here one hydrogen this side, one OH this side. So by looking carefully like this also, we can easily say this cannot be enantiomer, this cannot be homomer. So only one possibility, this will be your, one will be your diastereomer. So enantiomer not possible, homomer also not possible. This will be your diastereomer. Now here in this question we can see second number C2H5 ethyl, this is methyl bromine. So if you see, this is the, here we have to take the RS and NS nomenclature. So this group is your 1 because bromine has a highest atomic number, then followed by C2H5, then 3. So this will go like this one. So this is the configuration of S anti-clockwise. You can see 1, 2, 3. Again this is the 1, this is the hydrogen. So we have to take this as 2, this is the 3. So it goes like this one. So since hydrogen is this is toward S position, so this is like a S, but this is not S, this is actually a R. We will take the opposite, not S. S will not take, we will take opposite R. If hydrogen is other downward position, then we will take as it is, but if is any position, then we will take always opposite. तो ये S है और ये R है. So S and R, this means that this product is enantiomer. ये हमारा enantiomer होगा. यहाँ देखते हैं हम लोग, ये दिस इज थर्ड नंबर, दिस इज द ब्रोमीन. यहाँ पर 1 लिखिए, CH2Cl. तो ये दिस प्रोडक्ट 2 हो गया, ये 3 हो गया. तो इसको अब जब रोटेट करेंगे, ये दिस विल बी गोज लाइक दिस. सो दिस इज देयर S, बट दिस इज S इज नॉट देयर, दिस इज एक्चुअली R बिकॉज हाइड्रोजन इस तरफ है. हाइड्रोजन इज द फोर्थ पोजिशन, डाउनवर्ड भी है. सो दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, दिस इज 3. सो दिस विल गोज लाइक दिस वन. सो लाइक दिस मीन्स एंटी क्लॉकवाइज S. तो दोनों S है, ये भी S है और ये S है. सो दिस विल बी योर आइसोमर्स. ये हमारा आइसोमर्स होगा, सेम होगा. तो दिस विल योर homomers. These two will be your homers to each other. So this is our answers. Now in this cases fourth one, तो ये क्या है, E है, D है या H है. So let us find out. So in these cases ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन, तो ये हमारा 1 हो जाएगा. ये हमारा कार्बन से ऑक्सीजन है, तो ये 2 हो गया. और ये जो कंपाउंड होगा, पूरा ग्रुप होगा हमारा 3 होगा. सो इट इज़ गोइंग लाइक दिस वन. तो इस तरह जाने का मतलब है कि दिस विल बी योर S. ये हमारा S ग्रुप होगा. यहाँ पर ये होगा 1, ये होगा 2 और ये ग्रुप हो जाएगा हमारा, पहले ये होगा 1, 2 और ये 3, उसके बाद हमारा मिथाइल होगा. तो 1, 2 and 3. सो 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. तो इट इज़ गोइंग लाइक दिस वन. तो ये हो गया हमारा R, ये S है, ये R है ना. इस केस में सिमिलरली O1, तो ये 3 हो गया. सो 1, 2 and 3. सो दिस इज द 1, दिस इज द 2 एंड दिस इज 3. इट इज़ गोइंग लाइक दिस वन. सो दिस विल बी योर एंटी क्लॉकवाइज S. यहाँ पर हम देखें, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया. तो 1, 2 and 3. इट इज़ गोइंग लाइक दिस वन. तो ये हो गया हमारा S. तो ये हमारा S2S है और ये हमारा R2S है. नो, ये R नहीं होगा, ये भी हमारा S हो जाएगा. सॉरी, आई एम वेरी सॉरी. ये हमारा, ये भी हमारा S हो जाएगा. S, ये भी S है, ये S है. सो दिस विल बी ऑल्सो ए होमर. वी कैन सी, ये भी S है, ये भी S है, ये भी S है. सो बोथ आर S. सो दिस विल बी योर होमर. सो हियर वी सॉल्व प्रॉब्लम. ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया. तो 1, 2, 3 का मतलब ये हमारा S हो गया ना. इन दिस केस ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया. तो इसका मतलब ये हो गया, दिस इज R हो गया. तो ये S है और ये R है. तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा SR. S when S will be changed into R. So this will be your enantiomer. तो ये प्रोडक्ट हमारा enantiomer है. Now in this case C, इसमें तो SR लिखने की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्टली हम देख सकते हैं. 1 bromine is up position, 1 is down. 1 bromine up, 1 is down.
तो दोनों में तो फीचर्स एक ही लग रहा है, तो दिस विल बी एग्जैक्टली होमोमर। तो ऐसे प्रोडक्ट को होमर कहेंगे जो कि बाई ऑब्जर्वेशन से ही क्लियरली पता चल जाएगा। यहाँ पर RSS की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। यहाँ इस कार्बन को देखेंगे, ये हो गया 1, ये वाला कार्बन 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो इसको हम लिखेंगे 1, ये 2 और ये 3। सो दिस इज गोइंग लाइक दिस वन, 1 2 3। तो ये हो गया S। अब नाउ यहाँ पर हाइड्रोजन नीचे है, तो ये तो S है, लेकिन इसको S नहीं कहेंगे, इसको एक्चुअली कहेंगे R। ये कहेंगे गलत होगा। यहाँ पर 1, ये 2 और 3। तो ये हो गया 1, ये 2 और ये 3। तो ये आपका सर्कल ऐसे घूमेगा, तो ये भी हमारा हो जाएगा S की जगह ये होगा हमारा S होगा। तो ये तो R हो गया, ये S के प्रॉपर्ली होगा। इसके बाद हाइड्रोजन नीचे है, यहाँ ऑक्सीजन जिससे, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। इट इज़ गोइंग लाइक दिस वन। सो ये हो गया हमारा R। और इस केस में O यहाँ पर है, मिथाइल नीचे है, हाइड्रोजन ऊपर में है, ये तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो ये जा रहा है इस तरह से, ये क्लॉकवाइज है। R हम नहीं लेंगे, S। देखेंगे यहाँ पर ये R है, ये R है, ये S है, S है। इसका मतलब R2R S2S, दिस बोथ स्ट्रक्चर्स आर होमोमर्स। सो दिस इज आवर आंसर्स। यहाँ देखिए, तो यहाँ पर आप ऑल स्ट्रक्चर्स आर सेम एक्सेप्ट फिनाइल एंड H। तो ये आपका इसकी पोजीशन अलग अलग है, ये एक्सियल पोजीशन पे है, ये आपका और ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। तो इससे क्या होगा आपका, ये आपका दोनों इनैंशियोमर भी नहीं होंगे, होमोमर भी नहीं होंगे। सो ओनली पॉसिबिलिटीज डायस्टेरियोमर। तो इसमें आपको डायस्टेरियोमर्स का केस बनता है। यहाँ देखिए नंबर 9 में ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3। तो 1 2 3 फोर्थ यहाँ पर भी है। तो ये आपका नीचे जाएगा, कार्बन यहाँ पे है, तो इट विल गो लाइक दिस वन, 1 2 3 4। तो 1 2 3 पे ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज तो हम नहीं लेंगे। तो दिस विल बी योर 1 2 3 एंड दिस। तो दिस विल बी योर S। ये हमारा R है, तो S को S मानाएंगे। नाउ इन दिस केसेस दिस इज योर 1, ये 1 होगा, ये होगा 2 और ये होगा 3। तो 1 2 3 का मतलब क्या हो गया आपका, दिस इज गोइंग लाइक दिस वन। सो ये भी हमारा क्या हो गया, R होगा। तो ये इस पोजीशन पे है, तो R भी नहीं लेंगे, तो इसको भी हम क्या मानेंगे, S। ठीक है, 1 2 3 क्लॉकवाइज, हाँ ये S हो गया। ये भी आपका 1 2 और 3। तो 1 2 3 R है, तो इसको भी S लेंगे। तो ये दोनों S हो गया, S हो गया। यहाँ पर पहले ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड देन ये, तो ये ऐसे जा रहा है। फोर्थ इस तरफ है, साइड में है, तो फोर्थ का मतलब क्लॉकवाइज है, तो इसको भी हम मानेंगे S। ठीक है, इस केस में हमारा क्या होगा आपका, ये ब्रोमीन है, ये 2 है और ये 3 है। तो इट इज़ गोइंग लाइक दिस वन। ये आपका S है, तो इसको हम मानेंगे R। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है आपका, तो ये S है और ये S है। तो ये दोनों आपका S है और यहाँ पर S से R है। तो 1 2 3 4, ये भी R नहीं होगा, ये भी हमारा S ही होगा। एक्चुअली S कैसे होगा, ये 1 2 3 है, हाँ ये R ही हो जाएगा आपका। 1 2 3 R बराबर है, ये भी हमारा 1 2 और 3 है। तो 1 2 3, तो इसको हम ऐसे रोटेट करेंगे, तो ये भी आपका S होगा, तो ये भी हमारा R हो जाएगा। दिस विल बी R ओनली, ये हमारा R होगा। ठीक है, बिकॉज ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम R लेंगे, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो R लेंगे। तो S है, S से हमारा R हो जा रहा है, ये भी S से R हो जा रहा है। तो S से जब R फॉर्मेशन होता है, तो इसको हम इनैंशियोमर कहते हैं। तो बोथ दीज आर इनैंशियोमर टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, CHO है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये वाला ग्रुप हो जाएगा 3। तो 1 2 3, ये हो गया हमारा, ऐसे घूम रहा था, दिस विल बी योर S। उसी केस में यहाँ होगा, ये होगा 1, ये होगा आपका ऊपर वाला हो जाएगा 2, ये फिनाइल है। तो 1 2 एंड 3, तो 1 2 3 लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा क्लॉकवाइज, तो R हो जाएगा। दिस विल बी योर S, दिस विल बी योर R। तो ये याद रखना है, SR। नाउ इस केस में यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो इट इज़ गोइंग लाइक दिस वन।
दिस इज ए आर पोजीशन। अब यहाँ पर इस कार्बन के लेंगे तो ये हो गया 1, लेकिन यहाँ पर 2 लेंगे, ये 3 लेंगे, तो इट इज़ गोइंग लाइक दिस वन। ये हो गया S। तो S से R बन रहा है और R से S बन रहा है, यानी कि व्हेन जब S से R बनेगा और R से S बनेगा तो दिस विल कॉल एज ए इनेंशियोमर। तो ये भी आपका दोनों इनेंशियोमर है। यहाँ पर ब्रोमीन लेंगे, 1 होगा, ये 2 होगा और ये वाला 3 होगा। अब 4 ऊपर में, तो 1 2 3, दिस इज गोइंग लाइक ए S। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो इट इज़ गोइंग लाइक दिस वन। सो दिस इज हमारा हो गया R। इस तरह क्लॉकवाइज R, एंटी क्लॉकवाइज S। इस केस में 1 है, 2 है, 3 है, तो इट इज़ गोइंग लाइक दिस वन। तो ये भी हमारा हो जाएगा S। और ये हो गया हमारा 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3, तो ये अगेन इस तरह जा रहा है, दिस इज़ योर S। तो ये क्या हो गया हमारा, पहले S हो गया, R हो गया, S हो गया, S हो गया। दिस मीन्स दैट कि जो A और B है हमारा, A और B, और यू कैन से A, C और D है, जो हमारा A, C, D है, A, C, D आर होमोमर्स। A, C, D ये तीनों क्या है, हमारा होमोमर्स है। जबकि इसके रिस्पेक्ट में जो हमारा B है, इसके रिस्पेक्ट B है, मतलब A और B है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इनेंशियोमर हो जाएगा। सो दिस इज आवर आंसर्स 11th का। तो 12th में देखेंगे, हाइड्रोजन नीचे है, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो इट इज़ गोइंग लाइक दिस वन। ये हो गया हमारा R। उसी तरह यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, इट इज़ गोइंग लाइक दिस वन। ये हो गया S, ये R है, ये S है। इस केस में यहाँ पर 1 है, ये होगा 2 और ये होगा 3, तो 1 2 3, सो दिस इज गोइंग लाइक दिस वन। तो ये होना चाहिए S, ये होना चाहिए S, बट दिस विल बी योर S नहीं होगा, दिस विल बी योर R, बिकॉज ये हाइड्रोजन ऊपर है। ये हाइड्रोजन ऊपर है तो ये होगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो 1 2 3, 1 2 3 मीन्स दिस इज द R, तो R नहीं होगा, इसको बने S। तो फर्स्ट क्या हमारा S है, R है, S है, S है, तो R S। तो इसका मतलब क्या होगा कि R जो R है, ये हमारा क्या है, A एंड C होमर है, B एंड D ये भी हमारा होमर है, और A एंड D ये जो हमारा होगा, ये क्या होगा, ये इनेंशियोमर होगा। A D और यू कैन से B और D, B D नहीं, A और B ये भी कह सकते हो, ये भी हमारा इनेंशियोमर है, A एंड B, तो ये भी क्या होगा, हमारा इनेंशियोमर होगा। तो दीज आर द आंसर्स। इस पर कंपाउंड देख लीजिए, यहाँ पर CH3 हाइड्रोजन, CH3 हाइड्रोजन, ब्रोमीन हाइड्रोजन, ब्रोमीन हाइड्रोजन। सो दिस कैनॉट बी इनेंशियोमर, ये इनेंशियोमर नहीं हो सकता, होमर ये भी नहीं हो सकता, सो ओनली पॉसिबिलिटी डायस्टेरियोमर। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला is same, so only possibility that these two compounds are diastereomer to each other.